Hi, hello friends. Welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss reagent series. So in the last session I am going to already cover the PCC reagent. Okay. So in this today's session we are going to discuss the reagent manganese oxide. So in the earlier video we are already talking about the oxidation of alcohol and I am discussing the so many reagent. So one of them I am going to be discuss is the PCC, which is basically oxidize the alcohol. So in the same way the major key point of the reagent manganese oxide also the oxidation of alcohol itself. So basically this manganese oxide is one type of the mild oxidizing reagent that selectively oxidizes allylic or the benzylic alcohol. That you should keep in mind. Okay. So the major role of the manganese oxide is selectively only oxidizes allylic or benzylic alcohol. They are not going to be oxidize your primary and the secondary alcohol. Okay. So these are the major key point of this reagent manganese oxide. Okay. So just take a look. These are the some of the chemical reactions. Like if I can say over here, these are the example. So first you should identify which is the your allylic and which is the your benzylic alcohol. So just a minute, student. So just take a look. So when these actually most of the students are going to be confused in the phenyl and benzylic actually attachment. So when you are these benzene ring attached with the CH2 and these carbon again attached with the alcohol group, hydroxy group. So these actually moiety, okay, is known as what? Benzylic group. And allylic group means the double bond. Now these carbon and these carbon will be acts as a your vinylic carbon. So when these double bond, again these carbon will be attached to the one more carbon and that carbon attached to the OH group. So this actually linkage will be your allylic. Okay, so this is your allylic alcohol, benzylic alcohol. So they are going to be oxidized into the aldehyde. So that things you should keep in mind. तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, जो प्राइमरी allylic alcohol होगा that going to be converted into the allylic means aldehyde group, whereas the secondary जो allylic alcohol होगा that converted into the कीटोन. सो यही सिर्फ रोल है रिएजेंट मैग्नीज ऑक्साइड का. ठीक है. और यहाँ पे जैसे कि एज अर्लियर आई मेंशन दैट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल doesn't oxidize by manganese oxide, right? But suppose if I am going to be take the excess amount of the manganese oxide means approximately 10 to 15 equivalent amount of your manganese oxide, then it might be oxidize your primary alcohol. So these are the example. Here you can see these are the CH2OH. Okay, so here this will be your acts as what? Primary alcohol, because this alkoxy group carbon is attached with only one of the carbon. So this is my primary alcohol. So this primary alcohol gets oxidized into the aldehyde group. But कब? जब आपका MnO2 का जो amount होगा that is present into the excess amount means 10 to 15. So these things are going to be mentioned into the examination. So you should identify whether it's a excess amount or less amount. Then and then only your primary alcohol get oxidized into the aldehyde group. Okay, and the last key point of this reaction, if is there any, okay, more than one OH group will be present in your structure means 1,4-diol. Okay, so the 1,4-diol will be get converting into the lactone group. तो ये आपने PCC में भी देखा था. In the same way 1,4-diol here also converting into the lactone group. But suppose if is in any group like 1,4-diol यहाँ पर भी आपका suppose 1 2 3 4, but now if I can say over here, so students only remember that what कि 1,4-diol है, मैग्नीज ऑक्साइड दिया हुआ है तो डेफिनेटली लैक्टोन में कन्वर्ट होगा. सो स्टूडेंट ऑल्सो आपको एग्जाम में अगर ऐसे ऑप्शन मिला और ऑप्शन में अगर कोई लैक्टोन को भी इसके साथ अटैच है तो वो ऑप्शन में वही लिख के आते हैं. बट वहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर 1,4-diol ऐसे टाइप का कंपाउंड होगा तो वहाँ पे नो रिएक्शन होता है. तो मैग्नीज ऑक्साइड डजंट कन्वर्ट दिस 1,4-diol इनटू द फर्दर केमिकल रिएक्शन. द रीजन इज दैट इफ आई कैन से ओवर हियर these are the double bond of your benzene. Okay, now this position if I can say the double bond CH2, so these are the actually allylic position. This is again allylic position. So the 1,4-diol जो है यहाँ पर that is present as allylic position. But if I can say over here this 1 2 3 4 यहाँ पर आप अगर देखो there will be the no any double bond present into this because this is the cyclopropane ring. So because of this reason यहाँ पे 1,4-diol होते हुए भी मैग्नीज ऑक्साइड इसमें रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे आपका कोई भी allylic और बेंजिलिक अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी. तो ये बहुत एक्सेप्शनल केस है. सो इन दिस रिएक्शन मैग्नीज ऑक्साइड जो रिएजेंट है डजंट गिव एनी टाइप ऑफ द रिएक्शन. So these are the actually major role of the your manganese oxide that only it going to be converting your allylic and benzylic alcohol, not the primary and the secondary alcohol. ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है, अब हम लोग को ये पता करना कि रिएक्शन कैसे हो रहा है बिकॉज द रिएक्शन इज वेरी सिलेक्टिव. ओके, दे सिलेक्टिवली व्हाट
oxidize only the allylic and the benzylic alcohol, which is react much more readily or rapidly than your ordinary alcohol. So now to understand the overall chemical reaction, first we should understand what is the exactly mechanism, because from the mechanism we came to know that how these reactant means substrate are going to be converted your final product. Okay, so just take a look here. It will be the your step 1. So in the step 1, what will happen? The OH group of the alcohol is rapidly adds to the manganese oxide, okay, and to give and the ester group. तो in the step 1 क्या होगा यहाँ पर, जो आपका OH है that will be going to be present into the solution, और MnO2 सरफेस पे एक्चुअली रिएक्शंस हम लोग कैरिड आउट करते हैं. तो बेसिकली MnO2 जो रिएजेंट है दैट इज कमर्शियली अवेलेबल एंड वी आल्सो गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग टू द लैबोरेटरी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बाय यूजिंग द पोटेशियम परमैग्नेट and the manganese sulfate hydrated, they combine together into the aqueous NaOH and we will get here MnO2. बट ये कमर्शियली भी अवेलेबल है. तो इमीडिएटली यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा इन बिटवीन दिस OH ग्रुप. तो ये जो OH ग्रुप है ना, in between this actually add the MnO2 and you will get the ester. So this will be the your step 1. So this reaction will be carried out onto the MnO2 surface. So after addition of the MnO2, अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका जो मैग्नीज जो रिएजेंट जो हमें दिया हुआ है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है स्टूडेंट यहाँ पे +4. ठीक है, अब रिडक्शन गेट्स व्हाट रेड्यूस. अब यहाँ पे देख लो ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है. अब ये आपको मिला था इंटरमीडिएट RCH2, जस्ट टेक अ लुक RCH2, तो मैंने उसको H बाहर निकाला. देन ऑक्सीजन कनेक्टेड विद द मैग्नीज डबल बॉन्ड OOH. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू बी राइटिंग नाउ दिस स्ट्रक्चर जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4. अब यहाँ पे क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप द होमोलिटिकली फिजन विल बी टेकिंग प्लेस इन द स्टेप 2. okay, so now in the next step what will happen, the rate of this process will be the very slow. So this actually step 2 will be considered as what your rate determining step. Okay, where your hydrogen atom, okay, where your what हाइड्रोजन एटम जो है फ्रॉम द कार्बन अलाइलिक जो कार्बन है वहां से वो क्या होगा ट्रांसफर होगा और माइग्रेट हुआ टूवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम ऑफ द ऑक्सीडेंट. मतलब ये मैग्नीज ऑक्साइड क्या आपका ऑक्सीडेंट है. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है CO2 इसमें 2 है आपके इलेक्ट्रॉन्स होमोलिटिकली ब्रेक डाउन होंगे. यहाँ पर पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे होमोलिटिकली ब्रेक डाउन होगा. ठीक है, सो आफ्टर द होमोलिटिकली फिजन दिस बॉन्ड विल बी व्हाट कंबाइन टुगेदर एंड वी विल गेट हियर बॉन्ड OH. और इनका क्या होगा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा. दैट्स आई गोइंग जस्ट सपोज टू शो यू द बाय डिफरेंट कलर पे. और 2 रेडिकल्स ऐसे यहाँ पे रहेंगे एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैग्नीज गेट कन्वर्ट इनटू द 4 to मैग्नीज 3. तो ये स्टेप 2 है. आफ्टर होमोलिटिकल फिजन आप यहाँ पर देखोगे द स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल. ओके, आपको यहाँ पर देखना है द स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल बाय द हेमोन्स पोस्टुलेट is going to be very stable and that going to be increases the rate of this particular step. तो यहाँ पे आप अगर देखोगे रेजोनेंस जो है स्टेबिलाइज जो आपका जो रेडिकल है दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्टेबिलाइज बिकॉज यहाँ पर आप अगर देखोगे कार्बन जो है दैट विल बी व्हाट योर टर्शरी अलाइलिक है बराबर. सो द प्रोडक्ट हैज गोइंग टू बी व्हाट बोथ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द अलाइलिक एंड द सॉरी अलाइलिक और बेंजिलिक होता है. सो इट इज दैट इज व्हाई दिस रेजोनेंस एक्चुअली व्हाट योर स्टेबिलाइज रेडिकल. ठीक है, now in the next step 3 में what will happen, this structure I am going to be liking now in the linear way. अब यहाँ पे क्या होगा in the next step the bond between the oxygen मैग्नीज ये यहाँ पे homolytically break down होगा. as soon as this bond will be 2 electrons homolytically break down the manganese OH that going to be separate out. again the manganese 3 oxidation state get converted into the manganese 2 and over here these bond again break down and these are the again combine over here. So you will get the aldehyd. So this is how by adding the manganese oxide into your allylic and the benzylic alcohol your product get converted into the aldehyd. If just suppose it is a primary allylic alcohol then it converted into the aldehyde. If it is a secondary allylic alcohol then it is converted into the ketone. Okay, so these are the mechanisms. So I hope so you should understand very well. Now there will be the some of the application part means apart from the allylic and the benzylic alcohol there will be the most of the reported paper on the manganese oxide has to be reported जिसमें आपका फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट कोरी गिलमन गैनेम ऑक्सीडेशन जिसमें हम लोग क्या करते हैं बाय यूजिंग द मैग्नीज ऑक्साइड बाय यूजिंग द मैग्नीज ऑक्साइड वी आर गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज अल्डेहाइड जो ग्रुप है इनटू एस्टर. ठीक है, सो दीज आर द एप्लीकेशन पार्ट मीन्स अपार्ट फ्रॉम द अलाइलिक एंड बेंजिलिक अल्कोहल जो है उसको ऑक्सीडाइज करने के बजाय ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है अभी अल्डेहाइड का एस्टर में. तो ये कब होगा, इट इज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट योर
हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम साइनाइड जो ग्रुप होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्कोहल। ठीक है, तो जब आपके साथ मैग्नीज ऑक्साइड में कोई साइनाइड ग्रुप मतलब कोई हाइड्रोजन साइनाइड या फिर कोई सोडियम साइनाइड ग्रुप है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, देन दिस अल्डेहाइड ग्रुप कन्वर्टिंग इनटू द व्हाट एस्टर ग्रुप। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये पेपर रिपोर्ट किया था 2004 में। ठीक है, तो ये सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है एंड दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज व्हाट योर कोरी गिलमन गैनम ऑक्सीडेशन। अब सेकेंड एप्लीकेशन है यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस। ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस का मतलब यहाँ पर क्या है, दैट द CH2N जब फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पर आपका अमाइंस ग्रुप है, सो नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड इन द बेंजीन सॉल्यूशन बट द हायर टेम्परेचर, what I'm saying, but the high temperature means at the 81 degree Celsius, this amines group converted into either amide or the imines. ठीक है, so depending upon the whatever the substrate will be there, तो ये ग्रुप यहाँ पे ऐसे आपका कन्वर्ट हुआ इमाइंस में। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। तो ये भी आपका मैग्नीज ऑक्साइड का वन मोर रोल है। थर्ड है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोअजो कंपाउंड, मतलब हाइड्रोअजो कंपाउंड जो होता है उसका भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट high temperature. Reaction timing will be 24 hours in the presence of the benzene solvent. So these hydra-azo compounds get converted into these group. Azo compound में उनका conversion होगा and the yield will be look here 97% yield you will get. So एक्चुअली ये जो एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीज ऑक्साइड दे आर जस्ट सपोज टू आस्क इनटू द नेट एग्जामिनेशन में। तो बच्चे बेसिकली यही चीजें याद रखते हैं दैट MnO2 ओनली ऑक्सीडाइज लाइलिक एंड द बेंजिलिक अल्कोहल, दे आर जस्ट गोइंग टू बी फॉरगेट द एप्लीकेशन पार्ट। सो पर्पसली आई एम गोइंग टू बी कवर इन दिस सेशन। सो यू शुड रिमेंबर कि अपार्ट फ्रॉम दैट इफ मैग्नीज ऑक्साइड विल बी कंबाइंड विद द एनी अनदर सॉल्वेंट एनी अनदर टेम्परेचर देन व्हाट विल बी द रिएक्शन। तो ये कुछ एप्लीकेशन पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट दैट यू शुड कीप इन माइंड। नेक्स्ट एप्लीकेशन है यहाँ पर एरोमेटाइजेशन। अब एरोमेटाइजेशन मतलब साइक्लाइजेशन, यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीज ऑक्साइड अगेन रिफ्लक्स विद द इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। सो यहाँ पे आपको क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन विल बी टेकिंग प्लेस और आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये थर्ड एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है नाइट्राइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है आपके सबसाइड में, सो दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द अमाइड्स। ओके, सो सपोज दिस आर द CN ग्रुप, सो MnO2। अब यहाँ पे देखना है आपको मैग्नीज ऑक्साइड हैज टू बी प्रेजेंट विद द सिलिकेट SiO2, बेंजीन के साथ होगा, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा एंड देन हियर यू विल गेट द अमाइड ग्रुप एंड इल देखो 100% इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। ठीक है, तो CN में होता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। एंड द लास्ट, जैसे कि अर्लियर मैंने आई सेड टू यू दैट 1,4 डायोल अगर है तो वहाँ पे लैक्टोन होगा। ठीक है, मतलब मोर देन 1 OH ग्रुप से अगर ज्यादा है 1,4 डायोल लैक्टोन। बट अगर आपके केमिकल रिएक्शन में इज देयर एनी 1,2 डायोल अगर ग्रुप प्रेजेंट है, सो दिस इज द 1,2 डायोल है, सो दैट इज प्रिफरेंशियली गिव द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज एंड टू गिव अल्डेहाइड एंड द कीटोन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिवली क्लीवेज होगा एंड देन यू विल गेट द अल्डेहाइड ओवर हियर। ठीक है, सो दीज आर द बेसिकली सम ऑफ द एप्लीकेशन पार्ट दैट यू शुड कीप इन माइंड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू बी सॉल्व द क्वेश्चन। तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि MnO2 का रोल क्या है। आई थिंक सो अब तक आपको पता चला होगा व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ द MnO2 एंड विच ग्रुप दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टिंग। सो फर्स्ट यू शुड आइडेंटिफाई एज सुन एज यू विल गेट द इन द एग्जामिनेशन सबस्ट्रेट, तो उसको पहले अप्रोच करो, फाइंड आउट द वेदर इज देयर एनी अलाइलिक और द बेंजिलिक अल्कोहल विल बी प्रेजेंट और नॉट, देन दैट ग्रुप ओनली सिलेक्टिवली you get oxidized by the MnO2. Now here you can see in the structure of 2OH group. Now we have to decide which group will be selectively. अब आप अगर देखोगे ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है विनिलिक, नेक्स्ट कार्बन मतलब ये है आपका अलाइलिक अल्कोहल। अगर ये मैंने देखा यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसके बाद नेक्स्ट CH2 है यहाँ पर, तो ये तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन सा OH ऑक्सीडाइज होगा, ये है आपका अलाइलिक। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट में सिर्फ डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सो जस्ट टेक अ लुक, सो यू विल गेट CH2OH CH3। तो अलाइलिक अल्कोहल कौन सा आपका ये है, तो ये यहाँ पर आपका होगा CHO, सो दैट ग्रुप विल बी कन्वर्टेड। तो यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, या फिर CHO भी लिख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। अब इन द नेक्स्ट स्टेप देखो, आपको आइडेंटिफाई करना 2 OH ग्रुप है, कौन सा होगा कन्वर्ट। अब ये है डबल बॉन्ड पोजीशन, नेक्स्ट कार्बन, तो ये अलाइलिक, तो ये कन्वर्ट होगा। अगर मैंने इसको देखा तो ये कार्बन है नेक्स्ट, तो इसको एक्चुअली हम बोलते हैं होमो अलाइलिक। तो होमो अलाइलिक जो होता है, ठीक है, ये कन्वर्ट नहीं करता है। होमो अलाइलिक जो अल्कोहल है दैट नॉट गोइंग टू बी कन्वर्टेड बाय द MnO2। तो कौन सा होगा, ये कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले तो आपको अलाइलिक और बेंजिलिक अल्कोहल फाइंड आउट करना आना चाहिए इन द एग्जाम। अगर वो नहीं समझा
तो आप इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बना कीटोन। दिस इज हाउ, इट्स वेरी सिंपल। अब देख लीजिए ये नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इसमें देखो ये डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट कार्बन यहाँ पर है, तो ये अल्काइल, तो ये यहाँ पर नहीं होगा ऑक्सीडाइज। तो आपका जो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर वो होगा OH, यहाँ पे आएगा CHO, ठीक है। अब इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आप अगर देखो, ये तो बहुत सिंपल थे, ये पूरा CH2OH ग्रुप है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द व्हाट CHO ग्रुप, ठीक है। अब सॉरी स्टूडेंट, अब देख लो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अगर कोई ऐसा ग्रुप आपके पास एग्जाम में आता है जिसमें CH2OH है बट ये अलाइलिक है, बेंजीलिक है नहीं, बिकॉज यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं देगा, सॉरी। तो ये आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे होगा नो रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो दिस बॉन्ड नॉट गेट, बिकॉज यहाँ पे MnO2 ओनली क्या करता है आपका अलाइलिक और बेंजीलिक अल्कोहल का ही रिएक्शन आपको देगा। अब इन द नेक्स्ट इन दिस रिएक्शन देखो सॉल्व करो, ये है डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन में OH, तो ये ग्रुप यहाँ पे क्या होगा कन्वर्ट होगा, बराबर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा CHO, ये ग्रुप अलाइलिक है। अब यहाँ पे देख लो 2 OH ग्रुप है, फिनाइल यहाँ पर रहेंगे, तो दोनों यहाँ पे क्या होंगे ऑक्सीडाइज हो गए, तो बेसिकली यहाँ पे आपको 2 मिलेगा स्ट्रक्चर, फिनाइल डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल में, अब डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट कार्बन ये, तो ये अल्कोहल यहाँ पे कन्वर्ट होगा, तो आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट वो कुछ इस तरह से होगा, CH2OH ना, तो यहाँ पे CHO बनेगा। आई होप सो अब तक आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई। अब यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन, मैग्नीज ऑक्साइड है बट यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे गलती से भी MnO2 है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके डायरेक्टली CHO लिखते, तो ये रॉन्ग होगा एग्जाम में। ऑलवेज यू शुड सी कि यहाँ पे आपको रिएजेंट क्या दिया गया है, ठीक है। जिसके यहाँ पे 10 इक्विवेलेंट एक्सेस में दिया, अगर यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल होता तो डेफिनेटली वो कन्वर्ट होता। मैग्नीज ऑक्साइड दिया है CH2Cl2 के साथ रूम टेम्परेचर पे दिया, बट लुक इनटू दिस इन द लास्ट एग्जांपल, MnO2 दिया है विद द प्रेजेंस ऑफ हेक्सेन, अल्कोहल है NaCN है। तो मैंने बोला था एप्लीकेशन पार्ट में, अगर ऐसा कोई ग्रुप होता है हाइड्रोजन साइनाइड NaCN अलॉन्ग विद द MnO2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो दिस ग्रुप एक्चुअली कन्वर्ट इनटू व्हाट डायरेक्टली एस्टर, तो यहाँ पे आपका होगा C डबल बॉन्ड O यमी, तो ये इसका होगा फाइनल। तो यहाँ पे डायरेक्टली OH के प्लेस पे आपको लगाना है C डबल बॉन्ड O यमी, तो ये होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो आई होप सो देयर आर आई एम गोइंग टू बी कवर लॉट्स ऑफ एग्जांपल इन दिस सेशन, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये मैग्नीज ऑक्साइड का जो मेजर रोल है वो आपको पता चला होगा, बेसिकली हाउ दिस आर गोइंग टू बी अप्रोच टू द सबस्ट्रेट एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टिंग इन द फाइनल product, ठीक है। So thank you so much student watching this video. If you really like this video, don't forget to subscribe us. And one more thing, if you have any doubt regarding this reagent, you definitely ask to me. I resolve your all the problems, okay, and clear your all the doubts. So once again, thank you so much.